So in this question number 60, as you see, the three partners, Sarah, Sita and Meena, out of which Sarah dies, and we want to give her share of profit, and profit is to be calculated on sales basis. मतलब आपको सेल्स दी हुई है, कब की सेल्स दी हुई है, नोट कीजिए, प्रीवियस ईयर की सेल्स दी है एंड प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट दिया है 2016-17 sales and profit are given in the question. It is given 6 lakh was the sales and 1,80,000 was the profit of the previous year. Previous year's sales was 6 lakh whole year, and firm earned a profit of 1,80,000. And this is the point. This is the point on which you have to focus on. पिछले साल की सेल्स आपको बताई हुई है और पिछले साल कितना प्रॉफिट हुआ था ये बताया हुआ है. एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसकी अगली ही लाइन में आपको बताया है कि 2017-18 till 30th जून, जिस दिन सारा की डेथ हुई है, till 30th of June, the sales was 1,20,000. Sales was 1,20,000. So my dear students, on the basis of this information, you have to calculate the profit earned by the firm up to 30th of June. And it is very simple. On the unitary method basis, you can calculate. I have already told you in unitary method, whatever you have to calculate, keep it on the right side. Whatever you have to calculate, keep it on the right side. हमें सेल्स पता है इस साल की और हमें प्रॉफिट निकालना है on the basis of profit which was calculated on a particular sale previous year. हमें क्या निकालना है? Profit. On what basis? Sales basis. So how I will calculate? Sales I have kept sales on the left hand side, profit on the right hand side. We have to calculate profit. We have to calculate profit. That is why I have kept profit on the right hand side. Very important. Now previous year sales was 6 lakh and the profit was 1,80,000. According to unitary method, if sales is 1 rupees, profit should have been 1,80,000 upon 6 lakh. And if sales given of the current year for 3 months is 1,20,000, then total profit of the firm in this year up to 30th June should be unitary method 1,80,000 upon 6 lakh multiplied by 1,20,000. इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे आपकी सेल्स आ रही है 36,000. This 36,000 is the sales of the firm in this year
अप टू 30th जून। जिस दिन सारा की डेथ हुई है तब तक की सेल्स निकल गई है। बुक में उन्होंने परसेंटेज मेथड से किया, यू फॉरगेट दैट। उन्होंने पहले ये निकाला पिछले साल क्या परसेंटेज थी प्रॉफिट की ऑन सेल्स, तो उन्होंने निकाला 1,80,000 अपॉन 6 लाख इंटू 100, एक परसेंटेज आ गया। वो परसेंटेज है आपका 30%, यानी कि पिछले साल 30% सेल पे प्रॉफिट था। इस साल भी आप वैसे ही निकाल सकते हैं। 1,20,000 जो इस साल की सेल है मल्टीप्लाई बाय 30%, आ जाएगा फिर से 36,000। हम परसेंटेज मेथड पे नहीं जा रहे, हम उसको यूनिटरी मेथड से सिंपली सॉल्व कर ले रहे हैं। 1,80,000 प्रीवियस ईयर प्रॉफिट अपॉन प्रीवियस ईयर सेल मल्टीप्लाई बाय करंट ईयर प्रॉफिट, करंट ईयर सेल, दैट विल बी करंट ईयर प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ द पार्टनर्स डेथ। चाहे तो आप इसे फॉर्मूले के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यू कैन ऑल्सो राइट इट इन द फॉर्मूला फॉर्म। कहां पर लिख दें, if you want to write it in a formula form, current year profit is equal to last year profit upon last year sale multiplied by current year sale। एक बार फिर से इसको रिपीट कर दे रहे हैं। अगर आपको करंट ईयर प्रॉफिट निकालना है टिल द डेट ऑफ द पार्टनर्स डेथ, फॉर्मूला आप ये भी यूज कर सकते हैं डायरेक्टली, लास्ट ईयर प्रॉफिट अपॉन लास्ट ईयर सेल्स मल्टीप्लाई बाय करंट ईयर सेल, यू विल गेट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म टिल द डेट ऑफ द डेथ ऑफ द पार्टनर। तो आपका आ गया 36,000 रुपीज। नाउ जिस पार्टनर की डेथ हुई है सारा, हर शेयर इज 2/5, हर शेयर इज 2/5, 36,000 इंटू 2/5 कर लीजिए, वो आपका आ जाएगा 14,000 रुपीज। करंट ईयर प्रॉफिट ऑफ द पार्टनर, डिसीज्ड पार्टनर, विल बी कैलकुलेटेड नाउ by multiplying 36,000 into her share, Sarah's share. So 36,000 multiplied by 2/5, that will be 14,000 rupees। 14,000 rupees आपने शारा को पे करना है, and that will be credited to his capital or her capital account। उसके कैपिटल अकाउंट में on the credit side you will write by profit and loss suspense account 14,000 rupees। This is the second method, which is also known as profit calculated on sales basis। Profit calculated on sales basis। इसमें आपको यह ध्यान रखना है, आपने दोबारा से 3/12 नहीं करना है, टाइम बेसिस फॉलो नहीं करना है। सेल्स बेसिस में टाइम बेसिस तभी फॉलो करना है जब वहां पर सेल्स की और प्रॉफिट की कोई बात नहीं हो रही है। लाइक आई टोल्ड यू यस्टरडे, दैट वाज टाइम बेसिस वेयर यू हैव टू आल्सो टेक द टाइम 3/12, 4/12। कौन सा टाइम? टिल द डेट ऑफ द बैलेंस शीट, प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, दैट इज 31 मार्च। वहां से जब भी उसकी डेथ हुई है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त मंथ्स काउंट करके अपॉन 12। वो कब करना है? ओनली व्हेन profit is calculated on time basis। if it is calculated on sales basis, तो आप इस तरीके से, once again I am telling you, previous year sale लिखेंगे, previous year profit लिखेंगे, उसको यूनिटरी मेथड के हिसाब से अपॉन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बाय current year sales which will be given in the question। you will get the total profit of the firm for that period, 3 months or 4 months। तो ऑलरेडी 3 months और 4 month का ही प्रॉफिट आया है। इट इज नॉट द प्रॉफिट ऑफ होल ईयर, देयरफॉर वंस अगेन वी विल नॉट मल्टीप्लाई इट बाय 3/12 और द टाइम, दैट एंटरिंग टाइम का ही प्रॉफिट है दिस 36,000 रुपीज। दैट इज व्हाई इट शुड नॉट बी मल्टीप्लाइड अगेन बाय द टाइम, इट शुड ओनली बी मल्टीप्लाइड बाय हर शेयर, एंड हर शेयर इज 2/5।
2/5, जो कि टोटल प्रॉफिट आ रहा है आपका फिर 14,000 rupees. This 14,000 rupees is the profit to be transferred to Sara's capital account. This is all, my dear students, on sales basis, profit on sales basis. Second method, yesterday I told you about time basis, and the questions when you will solve, you have to follow any one जो भी क्वेश्चन में दिया होगा. Rest all the things are very simple. आपको क्या क्या देना है कल ही आपको बता दिया है. On partners capital account, you have to write all those things and calculate the amount to be paid to the deceased partner. Calculate the amount to be paid to the deceased partner. So my dear students, this is deceased partner's capital account. Suppose it is an account of B who died, and A and B, C are the remaining partners. So the partner who died will get number 1, he will get his capital credited to his account, standing credit to his account. तो देखिए आपने सिर्फ ये लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. मैं इसके नीचे यहां पर ब्रैकेट में लिख रहा हूं कैपिटल, ताकि आपको पता रहे कि वी हैव टू राइट कैपिटल हियर. वहां पर कैपिटल नहीं लिखना है आपने, यू हैव टू राइट ओनली बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, लेकिन लिखना क्या है उसमें कैपिटल. नंबर 2, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि आपको टाइम बेसिस पे कैलकुलेट करनी है. दिस इज फॉर योर इंफॉर्मेशन, दिस इज फॉर योर इंफॉर्मेशन. ये टाइम बेसिस में लिखना नहीं है आपने, यू हैव टू कैलकुलेट. अगर उसकी कैपिटल 50,000 है और आप उसे जो है 10% इंटरेस्ट दे रहे, सो यू विल कैलकुलेट 50,000 इंटू 10/100 इंटू 3/12 टाइम बेसिस 3/12, because you will provide him interest only for 3 months. So this should be known to you. Whenever in doubt, you see this recording again, ताकि आपको पता रहे क्या क्या चीजें लिखनी है और क्या नहीं लिखना है. इसमें पूरा ऐसे ही नहीं उतार देना है. Only these things you have to calculate जो बाय के साथ लिखी हुई है. नंबर 3, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट. Share of profit again on time basis. Share of profit, जिसके अभी आपने 2 मेथड सीखे. You learned 2 मेथड share of profit. तो जो भी मेथड होगा उसको अप्लाई करते हुए कैलकुलेट दैट, और यहां पर लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ये मत लिख देना बाय प्रॉफिट अकाउंट. ओके, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट. बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट मींस अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट में उसको प्रॉफिट हुआ होगा फर्म को, तो उसमें उसका शेयर हम उसे देंगे. जो भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट आएगा उसका यू विल राइट हियर बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट. बाय रिजर्व अकाउंट. बाय रिजर्व अकाउंट एक ही लिख रहे हैं, यहां पर 4 आपको पता है आते, या तो जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस. बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में 5 आइटम्स यू सी, या तो जनरल रिजर्व और रिजर्व फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस. क्रेडिट बैलेंस, तो उनमें से जो भी आपकी बैलेंस शीट में दिया होगा वो निकाल लेंगे आप, उसको मल्टीप्लाई बाय हिज शेयर. तो रिजर्व
जो भी एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स है उसमें जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका शेयर दे रहे हैं हम, सो दैट यू विल कैलकुलेट हियर एंड यू विल राइट हियर 1 2 3 4 5. अब हिज शेयर ऑफ गुडविल, हिज शेयर ऑफ गुडविल जो कि कौन देगा, रिमेनिंग पार्टनर देंगे। कौन से रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। तो इसमें मैंने आपको बताया दो पार्टनर है, एक ए है बाय ए कैपिटल अकाउंट, बाय सी कैपिटल अकाउंट। ये क्या दिया दोनों पार्टनर ने, गुडविल, एंड गुडविल विल बी गिवन इन गेनिंग रेशियो। सपोज उसे 10,000 उसका शेयर है गुडविल का, इट विल बी गिवन बाय ए एंड सी इन द गेनिंग रेशियो। तो दोनों जने मिलकर गुडविल देंगे। यहां पर बाय गुडविल अकाउंट नहीं लिखना है, यू हैव टू राइट कौन दे रहा है और कितना कितना अमाउंट दे रहे हैं। तो ए और सी देंगे, गेनिंग रेशियो में देंगे। अगर सिर्फ ए गेन कर रहा है तो सिर्फ ए लिखेंगे बाय ए कैपिटल अकाउंट, और नीचे लिख देंगे बिकॉज ओनली ए गेन्स। दैट इज ऑल इन द क्रेडिट साइड, दैट इज ऑल इन द क्रेडिट साइड। हिज शेयर ऑफ कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शेयर ऑफ प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, share in the reserves and accumulated profits, and share in the goodwill to be compensated by remaining partners in the gaining ratio. That's all on the credit side. On the debit side, ड्राइंग अगर उसने कोई की है, अगर उससे आपने कोई इंटरेस्ट और ड्राइंग चार्ज किया है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर लॉस हुआ है, यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट या तो इधर आएगा प्रॉफिट या फिर इधर आएगा सिर्फ लॉस। एक्यूमुलेटेड लॉसेस, एक्यूमुलेटेड लॉसेस मींस हियर क्या क्या आएगा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, एंड तीसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस। चौथा, इफ देयर इज गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट दैट हैज टू बी रिटन ऑफ, वो गुडविल आप यहां पर लिखेंगे, उसमें उसका शेयर राइट ऑफ करेंगे। ये सब डेबिट साइड में हम उससे लेंगे। आफ्टर दैट एड ऑल दीज थिंग्स, इधर का टोटल मान लीजिए आ गया आपका 2 लाख, क्रेडिट साइड टोटल 2 लाख, यहां पर लिख दीजिए नीचे 2 लाख, और ये सारा प्रॉफिट टोटल जो है इन सबको टोटल करके क्रेडिट साइड के टोटल से माइनस कीजिए, आपका आ जाएगा प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ assets and liabilities, profit on revaluation of assets and liabilities, वो आप यहां पर लिख देंगे। to profit transferred to A, B, C, capital account, old ratio,
और अगर इधर का टोटल ज्यादा आ जाए तो फिर इस साइड क्या आएगा, लॉस। आप लिखेंगे बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दैट ऑल्सो इन ओल्ड रेशियो। इसका भी मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूं एक। और ये deceased partners capital account is there on your board. This is the way you have to prepare it. Don't get panic. In one question you will not find all the items. In one question there will be less items. It would be very easy if you practice them properly, and in case of any doubt you can ask me. Now you can ask your problem. No need to copy. I will send it in the group. I will send it in the group. And if you want to see it again and again, you can see the recording later on from the YouTube. These are the items on the credit side. These are the items on the debit side. और आपका partners capital account, deceased partners capital account will be prepared. Yes, my dear Deepti. इसके आगे के जितने हैं करके मुझे फटाफट less than 7 or 10 days you have to show me. Understand? Okay, sir. Yes. If you try, you will be able to do that. Because abhi and things are clear. It is fresh in the mind. ये solve करें. Keep this format in front of you. वाला जो आपको एक्सप्लेन किया है सेल्स बेसिस पे वो भी अपने पास रखिए, और वेरी इजीली यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ डेप्थ. आगे अब जितने भी क्वेश्चंस हैं इसके आप करते जाइए, और यू आस्क मी. अभी एक मिनट दोबारा से आप क्लास ज्वाइन करेंगे. टाइम इज गेटिंग ओवर. आई हैव टू टेल सम मोर थिंग्स. ज्वाइन द क्लास अगेन.